PhD faculties or the people who know more about the branch is the main point what we are doing right now. And the company name is Preceptors Education Services Private Limited. Thank you. Thank you. Abhiram, please. Hello everyone, my name is Abhiram and I'm a software engineer with an experience of 11 years and currently I'm in Hyderabad due to family emergency. And I would like to bring a change in the society or the way people think about comparison and how we can use it in a positive manner instead of always thinking like, why don't I have this, and then thinking in a negative manner. Thank you. Thank you. Abhishek? Abhishek, are you there? Okay, Ravi, Hello. please. Hello. Okay, Abhishek is there. Abhishek first. Myself, Abhishek Kumar, founder of Ajanta Group. Basically, my organization is work in the field of LED light and robotics. Thank you. Thank you. Yes, Ravi, please. So good evening, everybody. This is Ravi Kumar from Bangalore. I am a marketing professional, expertise into business development. My expertise area is building automations and IoT segments. Thank you. Thank you. Atul sir, please. So, Namaste. My name is Atul Kumar, co-founder of Ren Ventures and for non-profits like Yen, Benjen, and IM Society and IM Family. And I'm mainly into the business of connecting entrepreneurs to investors and clients. Thank you. So my name is Vishal. I'm the founder of Learning While Traveling. We take the student-led startups abroad for global exposure. And also we are doing e-learning for small children, 3 to 12 years old. And we are giving them global exposure via online learning. So, okay, first question on the floor would be, what if there was no competition in our childhood? Let's say we go back to our childhood and there was no competition happening. We were kind of a no competition world. So how would that world look according to us? Let's hear. Maybe Abhiram can add. Abhiram, please. What do you think? A world without a competition. I mean, let's say from your childhood, if you see, from जो सबसे पहला competition हम लोग देखते हैं, it's basically in the school. Yeah. So I think everything is a balance, as I keep using this word, because without competition you will lose your focus or motivation actually. Without which you will be like, okay, I'll learn and I learn how much ever I can. Maybe in my opinion, it is a good thing because I look at things in a positive manner. So competition is required, but not at the expense of becoming a robot just to get marks. Just by hard things, get marks, then you'll get a good CGPA or good GPA, and then you'll find a job, and then you'll get money, etc., etc., etc. Instead of that, if you are focusing on understanding the purpose of what you are learning or what you are doing, so that you will have more passion in your life, in whatever the work that you do, then you will be happy. I think happiness is more important than money. I think everybody should realize that, in my humble opinion. So having competition is good, but not at the expense of going in this rat race. Mm-hmm. Okay. Sejal, what's your take? Competition. There, Sejal. Okay, maybe you can ask Aman first. Aman, what do you think? Competition नहीं होता तो क्या होता? सर मेरा टेक ये है कि सर बिना कंपटीशन के आई थिंक ह्यूमंस का जो उतना सर्वाइवल है, सो वो सर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन से ही हमने एक जो हम लोग आजकल जो फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक अगर आज कोई भी अगर नया डिस्कवरी हो रहा है तो दूसरी कंपनी या कोई दूसरे लोग करें कि नहीं मुझे और भी कुछ नया करना है या नया बूस्टअप करना है। इससे जो जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं उसकी एक मेन जो है
कौन पहले करता है तो कंपटीशन चलते हो पाता है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, लाइक अभी कोविड एरा चल रहा है, डिजिटल हम लोग हो रहे हैं, लाइक पढ़ाई के क्या चल रहा है स्टूडेंट्स का, हम लोग लर्निंग में फोकस करते हैं कि जो पढ़ाई करेगा या जो चीज करेगा वो तो सक्सेस मिल ही जाएगा उसको। बट अगर अभी देखें तो वो चीज नहीं मिल पा रही। लाइक जो बच्चे जब करिकुलम में पढ़ते थे, उसके बाद जो कंपटीशन होता था दूसरे बच्चों के साथ, तो रहता था कि नहीं मुझे 90% आना है, उसको हराना है या फिर उसको हराना है, एक मोटिवेशन अपने आप मिल जाता था। मैं जानता हूँ ये दिस नॉट राइट थिंग टू से, बट एक मोटिवेशन मिलता है आप अगर कंपटीशन में जाते हो तो। वहीं अभी हमारा भी लाइक कैट का प्रिपरेशन हो या फिर कुछ भी प्रिपरेशन हो, तो डिजिटल हम लोग कितना भी बूस्टअप मिल रहा हो, बट मजा नहीं है क्योंकि competition नहीं है ना। आपको एक चीज वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी हमें, हमारी वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ। Maybe you can exit and enter maybe, or move your location in a video. Maybe Nandan, what's your take on competition? Sir, I would answer after all the hosts will answer. Okay. So okay, Abhishek, क्या बोलते हैं competition? नहीं, हम बहुत हद तक कंपटीशन पे विश्वास नहीं करते हैं। कोलैबोरेटिव कंपटीशन जो होता है उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि खास करके ये स्टार्टअप के लिए बेसिकली यहाँ पे हम दुकान ये सब का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में हम एक कोलैबोरेटिव एक कंपटीशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्लाई भी करते हैं, और एक कंपटीशन वाला रूल भी पहले अप्लाई हुआ है। लेकिन दोनों में हमको कोलैबोरेटिव एक कंपटीशन वाला ज्यादा बेनिफिट दिखा, क्योंकि कंपटीशन करने से क्या होता है कि एक दूसरे को एक गिराने में ही या किसी का एक ग्रो नहीं हो पाता है। और इसमें क्या है कि भाई तुम भी बढ़ेगा हम भी बढ़ेंगे, दोनों लूटेगा पब्लिक, तो मिलजुल के दोनों पब्लिक को लूटेंगे। एग्जैक्टली वही बात है, हम भी बोले। Okay. Mr. Ravi, yeah, what's your initial take on competition? See, regarding competitions, I will take Atul sir point. So once he mentioned कि competitions हमारे birth में ही start हो जाता है। Like we took birth because of the competitions, we able to survive, and then fusions happen because of which we child birth takes place. तो competitions आप चाहिए नहीं चाहिए वो रहेगा ही, because बहुत पहले डार्विन ने भी बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, और सर्वाइव वही करता है जो compete करके आगे बढ़ता है। If you are unable to compete, you will be lose out the game, and then chances of survival will be very less. तो ये तो competitions का basic nature है, but the point is जब competitions आता है तो it's not only give you positive things, it's also give you negative things. So competitions when you be in that, बहुत सारे positive aspects भी आते हैं और बहुत सारे negative aspects भी आते हैं। कुछ लोग competitions के सकम में हो जाते हैं, पर कुछ लोग because of the competitions they accelerate and they get the momentum. So in my opinion, competition is good when you take it in like getting acceleration form. So on behavior part, I'll say there are three things which is very important. One is the friction, competition, and third thing is one is the frictions which is required. Second is the competitions, and third is the third. I will come back because that point I'm missing out. Third point. Mike, are you This is my point. moving somewhere? It's a bit of a background noise coming. Mike Voice is coming. कर रहा है, कुछ टक 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 कर रहा था। Anyway, okay, Anjan, what's your take on like, a world with no competition? What will happen? Here in the current context, I think competition is overrated. You see, I feel that over the last few years, competition has been essential for progress. अब प्रोग्रेस के लिए देयर आर सर्टेन लेवर्स। एक ऑब्वियसली सर्वाइवल वाली बात होती है, अगर सर्वाइव करना है तो आपको थोड़ा कुछ इंप्रूव करते रहना पड़ेगा खुद को। देन स्टार्टेड की यार कंपटीशन वाली बात होगी, यू कम्पीट विद योर पास्ट सेल्फ, दैट्स हाउ यू प्रोग्रेस, और यू कम्पीट फॉर द नंबर 1 पोजीशन, वहां पे हो जाता है पीयर कंपटीशन या किसी और के साथ कंपैरिजन वाला कंपटीशन। नाउ ऑफ लेट
competition, it's probably inbuilt in ourselves. अब रवि जी ने भी बताया वो 3 Idiots को opening dialogue, you start with competition, then you get into competitive exams, then you compete for limited resources, blah blah blah. So I think that's what the current understanding of competition is. You compete for the scarce opportunity that is available. Now अब competition फिर यहाँ पर एक वो वाली problem हो जाती है कि something we used to say हमारे B school days में एक चीज होती थी आरजीगिरी. अब आरजीगिरी का मतलब ये होता है रिलेटिव ग्रेडिंग. तो रिलेटिव ग्रेडिंग में क्या होता है, 100 में से अगर 90 नंबर आया तो ए आ रहा है ये जरूरी नहीं है. अगर हर किसी को 90 आया तब आपको 90 आने पे आपको डी भी आ सकता है. तो यहाँ पे वो आपको कर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. तो यहाँ पे आरजीगिरी होता है. तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हर किसी को 90 आया, हर किसी को 60 आया तो भी ए आ सकता है. तो यहाँ पे कंपटीशन में ये एक नेगेटिव बात ये हो जाती है कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू विन, you can also win if other person loses. So this is a negative part of competition. So of late, as Abhiram usually points out about the balance, so a balanced approach to competition, I don't know, in competition if we can ever create a win-win kind of a situation. But as of now, I think competition is the way to go. So if you are always competing about for the limited opportunity that is available. I think that's my take on this. Abhi, it's very important. Sure. Yeah, we'll dig deep into this. Yes, Sejal, please. Okay, according to me, competition is good. But when people turns this competition into the race of life, it is not good. But competition, if it is healthy, then it is very good because competition is only the thing we can set as benchmark. अगर competition नहीं होता तो हमें शायद पता भी नहीं होता कि हमें कहाँ तक पहुँचना है. So it acts as a benchmark. और competition होता है तभी I think success की एक होता है ना कि hunger होता है success का. अगर competition नहीं होगा तो फिर वो success होने का मजा नहीं होगा. To win is like a satisfaction. तो वो नहीं होगा I guess. Sure. Karthikeya, what's your take on a world without any competition? Can you imagine a world? Are you there? Oh, I'm sorry, Yes, I joined a bit late. No problem. I'm asking. Competition पे बात हो रहा है. So the question is basically, do you believe in competition or you don't believe in competition? I mean, can you imagine a world with no competition? Will that be an ideal world? What's your take? No, I don't think anyhow you can imagine the world बिना competition के. Even if it's a monopoly, you always have a competition to probably keep your secrets with you. So in some form or the other, competition तो आपका चलता ही रहेगा. It's really hard to define that. Okay. Ujjwal, what do you think about? सबसे actually opening statement ले रहे हैं. We'll come to the second round of talking and debating. Now, Ujjwal, what do you think? Competition नहीं होगा तो क्या होगा? Hello everyone. Yes sir. सर मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट मैं बात करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप में, तो मुझे पता ही नहीं है क्या होगा, पर मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स में जो कंपटीशन है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. मैंने ये चीज सीखी, मैं जब सेकंड ईयर में था प्रिपेयर करता कैट, मैंने अपने आप पे इतना प्रेशर ले लिया, इवन एक बार मुझे अटैक टाइप का हो गया, तो मेरी तबीयत पूरी खराब, बेहोशी टाइप में आ गया. तो कंपटीशन से जेलसी बनती है, एंजाइटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता. बट नाउ यहाँ पे हूँ मैं, सबसे यहाँ पे मेरे ख्याल से सबसे कॉम्पिटिटिव टाइम आएगा, क्या पता विशाल सर से या अतुल सर से ही मेरा कंपटीशन चल रहा होगा एज ए बिजनेसमैन के रिगार्डिंग, या सौरभ सर के ही चल रहा होगा. तब मेरे अंदर कोई फियर एंजाइटी नहीं होगा, बिकॉज सब लोग अपनी हर चीज एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पे सब कुछ. और इवन हम लोग कॉम्पिटिटर हो के भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. विशाल सर हेल्प कर देते हैं अतुल सर की, या पता अब विशाल सर मेरी हेल्प कर रहे हैं, सौरभ सर कर रहे हैं, एक दूसरे की सब हेल्प कर रहे हैं. तो हेल्पिंग नेचर होगा, देन कंपटीशन होगा तो ज्यादा बेटर होगा. बट कहो कि तुम्हें रैंक 1 लाना है, रैंक 1 जैसे ट्रेडिशनल इंडिया में चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इंडिया डिस्ट्रॉय होगा, अदरवाइज कुछ हेल्पफुल तो नहीं होगा कंपटीशन से. या दैट्स माय पॉइंट. Atul sir, please, what's your take?
हाँ, तो इसके पहले आई थिंक रवि जी ने किसी ने बोल दिया जो मेन या इवन अभिषेक ने बोला कोलैबोरेटिव कंपटीशन। तो 2000 में IIM अहमदाबाद मैंने एक पेपर लिखा था, अनफॉर्चुनेटली दिमाग नहीं था, पब्लिश नहीं किया किसी जर्नल में, कोलैबोरेटिव कंपटीशन एज द सिक्स्थ फोर्स। और अभी एक होपफुली छप जाए, IIM सिंगापुर के लोगों ने मुझे बोला था। तो यही तो कोलैबोरेटिव कंपटीशन का क्या मतलब हुआ कि आप compete कीजिए बट कुछ चीज में हम लोग कोलैबोरेट भी कीजिए। तो जैसे आज के जमाने में जितने सारे बड़े बड़े कंपनीज हैं, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को, दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स टू ईच अदर बट द सेम टाइम दे विल कोलैबोरेट विद ईच अदर। पता चला कि एक कंपनी में दूसरे कंपनी का, एक चिप कंपनी है, एक फोन बनाने वाली कंपनी है सैमसंग, चिप बनाने वाले के ना सैमसंग का चिप हो सकता है पहले एक जमाने में एप्पल में बिक रहा था या बहुत सारी कंपनी में। तो कोलैबोरेशन बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, वी इज ग्रेटर देन मी, लेकिन कंपटीशन में जरूरी है। और एक और जो बोला कि होमो सेपियंस सर्वाइव इसलिए क्योंकि हम लोग को ये कोलैबोरेटिव कंपटीशन आता था। हम लोग आपस में जंगल में जब थे तो एक दूसरे से खाने के लिए, हंटिंग के लिए compete करते थे। बट द सेम टाइम हम होमो सेपियंस क्यों पूरे बाकी सारे स्पेसिस पे डोमिनेट किया, बिकॉज होमो सेपियंस ने एक दूसरे से कोलैबोरेट करना भी सीख लिया। आपस में लोगों ने फैमिली बनाना स्टार्ट किया, फिर गांव बनाना स्टार्ट किया, फिर शहर बनाया, फिर बाद में सिटी बनाया, फिर बाद में स्टेट बनाया, कंट्री बनाया। तो उसका सबका सीक्रेट क्या था? कोलैबोरेटिव कंपटीशन। तो कोलैबोरेट कीजिए, compete कीजिए दोनों। और एक और चीज कि पीटर थियल बहुत बड़े फेमस एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर हैं, टेस्ला से लेके बहुत सारी कंपनीज में उनका हाथ रहा है। तो पीटर थियल ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी उनके एक स्पीच में, मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि हर स्टार्टअप का, हर एंटरप्रेन्योर का एक ड्रीम होता है मोनोपोलिस्ट बनने का। वो नहीं चाहते कि उसके अलावा कोई रहे, मैं हूँ, मैं ही रहूं और कोई नहीं, बाकी सब मेरे टीम के पार्ट रहे, सबको एक्वायर कर ले, खरीद ले, बैंकरप्ट कर दे। कोई एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि मार्केट में कोई और दूसरा बचे। ये हकीकत है, पर रियलिटी ये है कि संभव नहीं है। अगर आप बन जाते मोनोपोलिस्ट तो गवर्नमेंट आपको रेगुलेट करेगी। हर कंट्री में मोनोपोलिस्ट के अगेंस्ट लॉज होते हैं। इंडिया में MRTP है, मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस है। US में भी एंटी कॉम्पिटिटिव लॉज है। पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में होता है और होना भी चाहिए। कि मोनोपोली का एक घाटा क्या है कि आपके पास बार्गेनिंग पावर सारा आपके पास है। आप जितना प्राइस चार्ज करना चाहते हो कर सकते हो, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। आप चाहे वो फोन हो या कार हो या इवन खाना भी, तो दैट्स नॉट गुड फॉर सोसाइटी। तो सोसाइटी में लोगों के पास चॉइस होना चाहिए, एंड फॉर दैट मोनोपोली को नॉर्मली ब्रेक कर देना चाहिए। अभी लेटेस्ट अभी इस वीक का मीटिंग होने वाला है US में, यहाँ के सीनेट में, और उसमें जो 3-4 जो मोनोपोलिस्ट टाइप की कंपनी है उन सबको बुलाकर अभी क्लास लगेगा उनका सारे, जो यहाँ के पॉलिटिशियंस पूछेंगे। जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, अमेजन एंड एप्पल एंड गूगल, उन सारी कंपनी के लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ के सीनेट में, हाउस में, और इनको ये साबित करना पड़ेगा। यहाँ के सीनेटर्स पूछेंगे कि आप मोनोपोली नहीं है, साबित कीजिए, और आपको क्यों नहीं हम तोड़ दें टुकड़ों में। गूगल को 3 भाग में तोड़ दिया है, एप्पल को 2 भाग में, 4 भाग में तोड़ दिया जाए। तो उस पर डिस्कशन चल रहा है और मेरे ख्याल से अच्छी चीजें चलना भी चाहिए। सौरभ, या व्हाट्स योर टेक ऑन कंपटीशन? मैं 2 चीजें बोलूंगा। Am I audible? या एक मैं पर्सनल बोलूंगा और एक बिजनेस या स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा। पर्सनल वे में तो somehow I have got out of the rat race, and मुझे ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है when let's say Lenskart का फाउंडर कुछ कर रहा है या कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर अगर कुछ अच्छा कर रहा है, तो मुझे I don't feel कि मेरा मोनोपोली हो या मैं तो इतना नीचे हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ। मेरे लिए ना, जैसे सेजल ने बोला था, बेंचमार्क बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेंसकार्ट ने सिंगापुर में स्टोर खोला, तो मैंने भी सोचा हाँ यार, हम इंडिया से पे ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, हम बाहर भी खोल सकते हैं। तो आई हैव आल्सो स्टार्टेड एंगेजिंग आउटसाइड इंडिया आल्सो। तो मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया जो शायद मैं सोचा भी नहीं था। तो कंपटीशन हेल्प्स, नंबर 1 पर्सनल लेवल में। तो आई फील वेरी मच इंस्पायर्ड बाय ऑल द लीडर्स एंड आई ट्राई टू रेप्लिकेट और अपना वैल्यू ऐड करके, इनोवेट करके मैं उस रास्ते में, या कुछ नए दरवाजे खुल जाते हैं। ये पर्सनल लेवल पे। अगर मैं बिजनेस फ्रंट पे बात करूं, इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में एक प्लेयर कैन नॉट सफाइज द नीड ऑफ द कस्टमर्स, सो यू नीड पीपल।
अकेला क्लियर देखो पूरे इंडिया को चश्मा नहीं दे सकता है, इतनी कैपेसिटी नहीं है मुझ में. So I need Lenskart, I need Titan, I need a lot of brands and local optical store. I need a lot. तो इसीलिए अकेला तो विदाउट कंपटीशन तो आपका इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, और शायद कोई प्रोडक्ट इनोवेट हो जाए और नया कोई प्रोडक्ट आ जाए तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा. तो आई स्ट्रांगली फील कि कंपटीशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है. बहुत पहले जब मैं विप्रो में था तब कोई एक केस स्टडी में कुछ पढ़ रहा था जिसमें इंटेल और एएमडी का बात हो रहा था कि इंटेल जब माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है तो 90% इंटेल का का मार्केट शेयर है और एएमडी के चिप्स सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं. फिर भी आज तक इंटेल ने एएमडी को एक्वायर नहीं किया बिकॉज वो ये मानते थे कि कंपटीशन इज रिक्वायर्ड. So, मेरा ये opinion. Sure. Anyone left? Nandan, you wanted to say the last right? Yes. Yes. Very easy. Yes, answer. Yes. Nandan, as Atul sir told, as a beautiful things like in the high level matter, but as your question in the childhood, if there is a competition required or not, I would suggest till the 10th class, till the 7th class or 8th class, there should be a no competition between the students, because if there is 50 students in a class, if they compete with an first rank student in the same class, it was done. It was their prospective, like if there is a competition in the class and if they are going to be the one in the class, it's they are thinking that it's enough for the life. So the reason, as they are growing, they are thinking this is our only class, we have to be in the top in the class. This has to be changed from the beginning. If there is no competition till the 7th class, if there is a team building in the class, there has to be an opportunity that your competition is with the other districts. Like if there is a cricket match, you are a team and a competition is with the different districts and your competitors are there and you are the team. This team building and the competition merging should be low from the beginning, I think so. This could be a nice opportunity for the students who built as a team, and the competition would be a rather after the 7th, the maturity level would be increases, and it's depend upon, as Saurabh sir told, it's a good opportunity for the competition also. We can grab so many things from the competitions. This is my thoughts. That's thank you. Okay, thank you. Mr. Hari, what's your take on this competition of them? Can you imagine a world without competition? Please. Yeah, I joined a bit late, so I would give my preliminary remarks as such. Monopoly, I don't think like there is. It can't be that monopoly means it has no competition, because if you want to grow your customer satisfaction, you will always have your own benchmarks. Even if you are if your business is having monopoly, still you have your own targets to meet. So you have to achieve that year on year anyhow. And if you fail to do that, your position will deteriorate in the market, and maybe someone else will take the place. That is what my take on that regarding monopoly. Okay. Yes, Abhiraj, please. Yeah, I just wanted to briefly remind the Three Idiots movie on some of the great points that they make. And yeah, the competition should bring the best of yourself, along with other points that others mentioned, the collaborative competition, and improve yourself day by day to. And I think the system of in the education system, where instead of making people or kids or the younger generation look at it only from the first rank point of view, I think motivating them to learn instead of concentrating completely on the ranks is the major push that is needed, in my opinion. Thank you. Okay. Next question we can discuss to really understand this competition. I think competition has various levels. Okay.
at childhood we are maybe competing with just the class and maybe our neighbors a bit, right? Then at some point maybe we are competing at a national level, and maybe out of that some point I mean some people at some point maybe competing at an international level. ठीक है, तो एक चीज कंपटीशन में एक प्रॉब्लम हो जाता है, आई सी, आई मीन लेट्स से इफ वी टॉक जस्ट अबाउट अ चाइल्डहुड लेवल, we are just within that 50-100 people, and this guy who comes first, second, whatever, उसका सर चढ़ जाता है थोड़ा सा. So let's hear from everyone. Do you agree to this कि 50-100 बच्चों में अगर वो कोई फर्स्ट हो जाता है, उसका सर चढ़ जाता है, नेबर में भी सर चढ़, क्लास में भी सर चढ़ जाता है, टीचर भी सर पे चढ़ा देती है उसको, और ये बहुत भारी पड़ता है उसको मे बी at a later stage of their life. Anjan, what do you think? Anjan, are you there? Anjan, yes. Yeah, I'm here. IIT में मैं तुम्हें थोड़ा सा और पर्सनलाइज्ड वे में खींचता हूँ. हाँ, बोलो. IIT में तो सारे टॉपर थे, तो बहुत लोग तो बेचारे डिप्रेशन में चले गए कि यार क्या है ये, कहाँ है, फंस गए हैं, ये है वो है. तो ये एक नेगेटिव साइड मैं राइट अवे बोलता हूँ. व्हाट एल्स डू यू थिंक? आई मीन डू यू एग्री टू दिस या व्हाट डू यू थिंक? यार इट्स ट्रू. सर तो चढ़ जाता है ना पहले. यार एक बंदा जिसे बचपन से बोला गया बॉस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, एंड जब जहाँ पे वो पहुंचता है वहाँ पे हर कोई को ये बोला गया है, तो इट्स मोर अबाउट टेस्ट ऑफ नर्व्स यार. मतलब है, मतलब कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो इट हैपेंस. मतलब समटाइम्स इट बिकम्स थोड़ा तो ओवरवेलमिंग हो जाता है कि यार यहाँ तो हर कोई मेरे जैसा है. मतलब if you are used to becoming the best of everyone, everybody looking up to you and all, so sometimes adaptability की challenge तो होती तो है. ये बड़ा valid point है. तो मे भी उतना पैम्पर नहीं करना चाहिए. If the kid is very good, ठीक है, मतलब but there is the good thing is not an absolute skill, it's a relative skill. कहीं दूसरी जगह गए तो वहाँ पे relatively you may or may not be good. So yeah. हर सिर का सवा सिर मिल जाएगा कहीं ना कहीं. अतुल सर आप पे आते हैं, आपने थोड़ा थोड़ा बताया भी है ये स्टोरी. हाँ, बताइए. तो ये जो आर्जीगिरी वाला जो पॉइंट है ना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में. कुछ लोग बचपन से आर्जीगिरी के उनको आदत हो जाती है कि उनको लगता है कि दुनिया बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है और मुझे compete करके छीन के झपट के लेना है वरना खत्म हो जाएगा. बट एज यू ग्रो अप इन लाइफ यू रियलाइज कि नहीं, द वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट दो नॉट एनफ फॉर ग्रेड. तो कमिंग बैक टू जो एग्जांपल मैंने बिजनेस स्कूल का दिया था, तो जब IIM अहमदाबाद में गया तो फर्स्ट जाते के साथ मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, आई डोंट बिलोंग हियर. कि सारे लोग बड़े क्या कहते हैं होनहार स्टूडेंट्स रहे हैं, somebody is from IIT और इवन NIT और अपने अपने फील्ड में सब लोगों ने लाइफ लॉन्ग टॉपर किया था. बट रवि सी का एग्जाम्पल होता है, एक प्रोफेसर हुआ करते थे रवि सी. तो रवि सी का बेस्ट पार्ट ये था कि ऑपरेशंस के प्रोफेसर थे, रियली ग्रेट प्रोफेसर. तो वो फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट वीक में ही लोगों को जमीन पे ले आते थे. ही वुड ब्रिंग ऑल द ईगोज बैक टू द ग्राउंड कि आप होंगे, आप IIT के टॉपर होंगे या जो मेरा क्लास का जो टॉपर था वो BIT मिश्रा का थ्रू आउट द लाइफ 10 पॉइंट कभी उसको सेकंड कभी किया ही नहीं है. IIT नहीं गया लेकिन ओवरऑल ही वाज अ ग्रेट गाय. लेकिन अल्टीमेटली ये रियलाइज करा देते थे रवि सर फर्स्ट फ्यू सेशंस में ही कि आप लोग को कुछ नहीं आता है. यू आर लाइक आप लोग सब लोग ईगो डिमोलिशन का काम करते थे, एकदम डिस्ट्रॉय कर देते थे. और ये नहीं कि उनको इंसल्ट करके क्वेश्चंस पूछ के ऑपरेशंस में कोई टफ क्वेश्चंस पूछ दिया और बड़े बड़े लोग धुरंधर लोग अचानक. सिमिलरली एक और प्रोफेसर फाइनेंस के थे, प्रोफेसर नाम में भूल रहा हूँ, रघुनाथन, जो बाद में किसी बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन वगैरह बने थे. तो रघुनाथन फाइनेंस के प्रोफेसर थे. तो बैठ के बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फाइनेंस के विजार्ड हैं, उनको फर्स्ट ही कुछ सेशन में उनको रियलाइज कर दे कि आपको कुछ नहीं आता है. और कुछ नहीं आता है बाय हिज हार्ड क्वेश्चंस एंड बाय हिज असाइनमेंट्स. और फर्स्ट टाइम में बहुत सारे लोग को फेल करा दिया उन्होंने. रवि सर के क्लास में बहुत लोग फेल हुए और रघुनाथन सर के क्लास में, क्योंकि मैं तो CA का टॉपर था, मैं IIM अहमदाबाद में भी मतलब कि मैं क्लास का टॉपर एक्सपेक्ट करने आया था और तो मैं फेल कर गया. तो वो जो डिमोलिशन का जो काम किया ना रघुनाथन सर ने या रवि सी सर ने और ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर अहमदाबाद में थे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था कि उन लोगों को ये सिखा दिया कि तुम्हारा जो एरोगेंस है ना
उसको अब क्लास के बाहर छोड़ के आओ, क्लास में जब आ रहे हो तो स्टूडेंट हो और सीखने के लिए आओ, और बाकी सारे जो क्लासमेट्स हैं वो सब भी एक से बढ़ कर देखें, उनसे भी सीखो और प्रोफेसर से सीखो, एंड गिव अप दैट एरोगेंस. सो दैट इज इंपॉर्टेंट इवन इन बिजनेस वर्ल्ड. जो हम मोनोपोली की बात कर रहे हैं, तो मोनोपोली में भी जो बड़े बड़े जो मोनोपोलिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, तो जब तक उनको उनसे कोई बड़ा नहीं आता है ना, तब तक उनका एरोगेंस जाता नहीं. जैसे एक जमाने में Bill Gates was the richest guy in the world and Microsoft के through made a lot of money. But once कोई नया आ गया, उनके लिए कंपटीशन आ गया, तो उनको चैलेंज किया, तो देन ऑल्सो थोड़ा सा टोन डाउन होगा, और बहुत सक्सेसफुल होने के बाद थोड़े लोग नॉर्मल हो जाते हैं. और बिल गेट्स ने रिचेस्ट मैन बनने के बाद या सेकंड रिचेस्ट, उन्होंने अपनी सारी ज्यादातर वेल्थ डोनेट कर दिया और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन खोल दिया. बेस्ट पार्ट क्या था कि वॉरेन बफेट जो सेकंड रिचेस्ट है, उन्होंने भी कहा कि ये तुम तो इतने स्मार्ट हो बिल, और तुम पे भरोसा है, तो मेरा भी पैसा ये 20-25 बिलियन ले लो. तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल. दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव कंपटीशन कि रिचेस्ट गाय को सेकंड रिचेस्ट गाय ने अपना पैसा दान कर दिया चैरिटी में. एंड आई थिंक दैट इज अ गुड मॉडल आई वुड एडवोकेट कि मैं अपने फील्ड में आई वुड बी द सुपरस्टार, बट आई कैन ओनली सक्सीड इफ आई कोलैबोरेट विद अदर्स. मैं दूसरों के साथ पार्टनरशिप करूंगा, इकोसिस्टम्स बिल्ड करूंगा, देन देयर इज अ हायर चांस ऑफ. कभी कभी नया मार्केट क्रिएट करना पड़ता है. जैसे कि सौरभ का एग्जांपल लेता हूँ. सौरभ जी का चश्मा का ब्रांड है, तो उस ब्रांड में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बट उनका जो मॉडल है, उस मॉडल को अगर सक्सीड कराना, तो उनको बहुत सारे लोगों के साथ, अलग अलग रिटेल चेन्स के साथ, फैशन इंडस्ट्री के साथ, या अलग अलग के साथ पार्टनरशिप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सक्सेस और ज्यादा मिलेगा. ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अगर ग्लोबली लेवल पे बिलियन डॉलर पे जाना चाहते हैं, तो कोलैबोरेटिव कंपटीशन के अलावा, कोलैबोरेशन के अलावा कोई उपाय नहीं मेरे हिसाब से. Sure, Sejal, please. Sejal, are you there? Not responding. Okay, so the reason why I was asking this is, Sejal, yeah, Sejal, please. Voice break हो रही है. सेजल, ब्रॉडबैंड पे थोड़ा खर्च करो, गेट अ गुड ब्रॉडबैंड. या लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज. कंट्री चेंज कर लो, दूसरे कंट्री की कंट्री मैनेजर बन जाओ. नहीं, और कंट्री मैनेजर हो तो विशाल सर को थोड़ा सा बिल करो अपने सारा ब्रॉडबैंड का एक्सपेंस. विशाल सर बोलेंगे कि बहुत कम इनका फीस है, फीस बढ़ा देंगे, ऐसे बोलेंगे. तो इसमें ऐसा था कि लोग कमीशन मांग रहे थे मेरे से फायदा कराने का, तो मेरे से नुकसान कराने का नेगेटिव कमीशन भी मिलना चाहिए उनको, राइट? अच्छा, चल आतिक, सेजल अभी तो एक बार एग्जिट करके एंट्री करो. अभिषेक, हाँ अभिषेक, तुम क्या कुछ बोलना चाह रहे थे? ऐसा कुछ. Am I audible, sir? You are audible, but you know, very breaking way kind of. अभिषेक, हाँ बोलो प्लीज. हेलो. हाँ बोलो. ये सेजल बोल रहे थे कि कंपटीशन जो होता है वो हंगरी का चीज होता है. ये सब जब बच्चा रहते हैं लोग तब लगता है, क्योंकि पहले जो आप बात बतला रहे थे कि फैमिली से ही कंपटीशन ये स्टार्ट हो जाता है कि आपका अंकल का लड़का आपके साथ पढ़ रहा है, तो उसी 2 आदमी में कंपटीशन होता है कि किसका मार्क्स ज्यादा आया. फिर हम लोगों को आगे चल के क्या लगता है कि हाँ IIT निकल जाए तो मतलब हम लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी हैं लोग. पर IIT में जाने के बाद कहीं पता चलता होगा कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो मेरे से भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं. तो हम बड़ा बनेंगे तो किसके सामने बनेंगे? वही अपने घर पे आके गांव में कि हाँ भाई हम IIT में पढ़ते हैं, यानी बहुत सक्सेसफुल है, इंटेलिजेंट है. तो ऐसा हम कुछ नहीं मानते हैं. आप कहीं से भी पढ़ के कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा बन सकते हैं. कि कंपटीशन वाला चीज नो, बस कंपटीशन से सीखना चाहिए, और अदर देना हम उसको कुछ नहीं मानते हैं कि कंपटीशन हंगरी है, क्या है. लॉस छोड़ के जल्दी प्रॉफिट नहीं देता है. बस अपने एक बताना चाहेंगे, अपने आप से कंपटीशन कीजिए. जो भी है, जो भी बने, हम उतने में खुश है. ये सोचिए
मेरे हिस्सा में इतना ही चीज था, इसी को हम एंजॉय करें। पता चला कल का चक्कर में हम अपना आज भी बर्बाद कर बैठे। आज है एकदम एंजॉय कीजिए मस्ती से, और क्या। जो है समा कल हो ना हो। हाँ सही, यू आर बैक नाउ। अभी वीडियो बफर हो रहा है तो आई गेस कनेक्शन शुड बी गुड। हां सर आवाज आ रही है ना मेरी? अभी आ रही है, अभी आ रही है। सर मैं अतुल सर के पॉइंट पे बोलना चाहूंगी। जो उनके प्रोफेसर्स ने किया माइट भी सही हो, आई डोंट नो, बट शायद वो गलत भी हो सकता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा बेकार भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी का ईगो कम करने की कोशिश करते हो या जो भी, फर्स्टली सर जिस बात पे वो प्राउड फील कर रहे हैं वो अर्न किया है, मतलब उनने दिन रात उस चीज के लिए काम किया और उसके बाद उन्हें वो मिल गया। लाइक अतुल सर आपने कैट क्लियर किया था, इट्स अचीवमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सेजल का पॉइंट आई गेस। हाँ तो सर आप ही बोलिए, बताइए। हाँ तो मतलब ईगो तो बोलना चाहिए, प्राउड बोलना चाहिए, आई थिंक मे बी वर्ड्स कैन बी डिफरेंट। नहीं तो सेजल से हम एग्री करते हैं कि प्राउड फील करना, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया हो कि आई एम वेरी प्राउड कि मैं IIM अहमदाबाद से पढ़ा हूँ, बहुत प्राउड हूँ कि मैं एन कॉलेज से, जहाँ से भी पढ़ा हूँ, सैनी स्कूल से पढ़ा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ एवरीथिंग। मैं अपने माँ बाप, गाँव, सबके लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ, लेता हूँ। लेकिन प्राउड फील करना, प्राइड एक अलग चीज है और एरोगेंस एक अलग चीज है। मैंने कहा कि एरोगेंस को उन्होंने प्रोफेसर ने डिस्ट्रॉय किया। क्या बहुत बचपन से फेलियर देखा नहीं था। बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट्स ऐसे थे कि वो बचपन से ही टॉपर, क्लास के टॉपर, सेक्शन का टॉपर, डांस में टॉपर, म्यूजिक में टॉपर, ऐसे में कंपटीशन, डिबेट में, हर जगह पे उनका था। तो वो जो एरोगेंस आ जाता है कभी कभी, तो कॉन्फिडेंस इज गुड थिंग, लेकिन एरोगेंस आ गया था बहुत लोगों में। तो उस एरोगेंस को थोड़ा सा एक चेक लगाना जरूरी था। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप हो और एरोगेंस हो तो आप सीख नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट को उनके एरोगेंस को थोड़ा डाउन प्ले करना, नीचे लाना, एंड देन उसके बाद फिर लोग लर्निंग मोड में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स को ह्यूमिलिटी और लर्निंग मोड लाना जरूरी है। तो उन्होंने उनको ट्यून कर दिया उनसे। ये नहीं कि उन्होंने उनके ईगो को, और वो सारे लोग आज भी अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, कोई डिप्रेशन में नहीं गया, किसी ने सुसाइड नहीं किया, लेकिन लोगों थोड़ा बहुत जमीन पे आ गया, एंड व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। ह्यूमिलिटी ला दिया लोगों ने। सौरव, यू वांटेड टू से समथिंग? आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। सर मेरा, हाँ बोलो सेजल। मैं बोलूं? हाँ बोल दो। सर मेरा ये कहना है कि कॉन्सिक्वेंस वैसे हो सकते थे ना कि कोई डिप्रेशन में चला जाता। करेक्ट, क्योंकि आप इस पे बात करते हैं एक्चुअली। किसी ने हमेशा से जले। अतुल सर ने पॉजिटिव वाइज बात किया। एक मिनट किसी बस, एक मिनट। हाँ बोलो। सर मतलब ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि किसी ने हमेशा से खाई जलेबी थी, अब एकदम से आप उसको मिर्ची खिला दो, वो भी लाल वाली, तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो हो सकता है ना। मतलब मेरा पॉइंट ये है, ऑल्दो वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है तो मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है। I agree with that सेजल। और सेजल फेवरेट है मेरे, क्योंकि वही उसी के साथ डिस्कशन करने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि डिफरेंट व्यूज वाले होते हैं ना। तो उसमें क्या सेजल की मेरे बैच में, आई रिमेम्बर फर्स्ट टर्म में ही एक क्लासमेट मेरा फेल हो गया था। उसको शॉक लग गया कि हाउ कैन आई फेल, मैं तो इतने अच्छे। तो कुछ लोगों ने बहुत लोग डिप्रेशन में भी आते हैं, जाते हैं, और ये प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, या आजकल तो नॉर्मल कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी लोग, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सेजल ऑन दैट। तो लेकिन IIM में एक खास बात ये था हमारा कि जो लोग आए थे बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाई अचीवर्स का एक ग्रुप था। पढ़ाई का क्वालिटी क्या था पता नहीं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, बहुत सिलेक्टेड लोग आए थे, क्योंकि एग्जाम के प्रोसेस बहुत टफ एग्जाम से आए थे। तो उन हाई अचीवर्स के बीच में ना वो डिमोलिशन उनके कॉन्फिडेंस को, वो आज भी सारे लोग बहुत ही क्या कहते हैं, अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको नॉर्मलाइज कर दिया। अदरवाइज क्या है ना कि आप इतने एरोगेंट होते हो कि दुनिया आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। तो वो चीज, और जो दूसरा एक पहले पॉइंट बता रहे, 4 पॉइंट रवि ने बोला था कि ग्रेडिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा था, कि रिलेटिव ग्रेडिंग,
उसका एक साइड इफेक्ट भी हुआ। ग्रेडिंग में क्या है कि आपका ग्रेड आप 90 लाते हो 100 लाते हो मैटर नहीं करता है, क्लास में बाकी लोगों ने क्या किया। तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी था कि रिलेटिव ग्रेडिंग के चलते लोग, मान लीजिए किसी ने नोट छुपा दिया, क्या वो उसको पता चल जाएगा, वो ज्यादा नंबर ले आएगा, तो लोग एक दूसरे में वो भी करते थे। और मैं कंप्लीटली बोल रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे क्लासमेट थे वो हाई आरजी लोग थे, हाई रिलेटिव ग्रेडिंग थे। दूसरे वाले को पता चला, एक हाँ इंटरेस्टिंग कहानी है, तो सीरियस हो गया। तो 2000 में ही अर्थक्वेक आया था, गुजरात का जो अर्थक्वेक आया था भुज वाला। तो हमारा जो जिसका नाम बताऊं, वीटी भारद्वाज, जो टॉपर था, वन ऑफ द बेस्ट गाइस। तो अचानक अर्थक्वेक आया तो हॉस्टल से एक ईंटा, हमारा आई ऑन द कैंपस तो लाल ईंटे वाला था, तो ईंटा गिरा और चोट लग गया। तो पूरे क्लास में र्यूमर ये था, हाँ, और मजाक में ही, कि जो नंबर 2 था उसने वो ईंटा उसके सर पे फेंका है, इवन दो इट वाज फॉल्स। बट इस तरह का कंपटीशन था, नॉट गुड। लेकिन अब आज 10 साल ज्यादा हो गए, 18 साल हो गए, तो अब सारे लोग अच्छे दोस्त हैं एंड वो कंपटीशन खत्म हो गया। लेकिन उस टाइप के जो लोग थे ना, तो वो लोग उसी इंडस्ट्री में भी गए। कोई लोग वेंचर, उस जमाने में मैकिंजी, बीसीजी गया, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, या गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन में गया। तो उस इंडस्ट्री में भी उसी तरह के लोगों की रिक्रूटमेंट भी वैसे होती है, हाईली कॉम्पिटिटिव होता है। आप कोई भी कंसल्टिंग कंपनी जाओ, मैकिंजी में या बीसीजी में, तो वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। मैकिंजी का तो एक रूल है, फेमस है, कि आप 3-4 साल बाद या तो ऊपर जाओ या नहीं तो बाहर जाओ। मतलब कि बहुत सारे कंपनीज में भी पॉलिसी होता है। तो जिसको जो सूट करता है वो करना चाहिए। तो फॉर्चुनेटली IIM में मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल हैड कम फ्रॉम सच ए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड कि कोई डिमोलिश और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उनका टेम्पररीली सेटबैक लगा, नॉर्मलाइज हुई, ईगो खत्म हुआ, लेकिन लाइफ में बाकी सारे लोग बहुत खुश हैं। और जब हम लोग अभी नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली हम लोग मिलेंगे अपने 20th यूनियन में, 2022 में, 2021 में, तो बहुत प्यार से मिलते हैं। जब 15th यूनियन में मिले थे बहुत प्यार से मिले, 10th में मिले थे थोड़ा कम, लेकिन मिले प्यार से। तो वो हमारी पुरानी जो कंपटीशन थी वो चली गई। अब सारे लोग दोस्त हैं एक दूसरे के, मतलब अपने अपने इंडस्ट्री में, करियर में। बट वो लाइफ का अर्ली फेज होता है, उस फेज में हाईली कॉम्पिटिटिव थे। बाद में वंस पीपल मैच्योर हो गए, कोई पार्टनर है कंसल्टिंग कंपनी में, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक में MD है, तो अब वो कंपटीशन खत्म हो गया। अब लोग आपस में फ्रेंड के रूप में ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। सर चेंज हो गए। Now you are not their competitor, but they will definitely competitor at this phase of their life. Absolutely true. Absolutely, Saurabh. Yeah, they're competing with कोई मान लो गोल्डमैन सैक्स में गया हुआ है और दूसरा जो गया हुआ है वो भी गोल्डमैन सैक्स में ही गया, लेकिन वो एक बंदा जो सबसे ज्यादा स्मार्ट था, हाई आरजी था, या सबसे तेज था, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बना हुआ। दूसरा बंदा की मान लीजिए वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मतलब VP। तो आपस में भी अभी भी वो कंपटीशन चल रही है और वो तो चलते रहेगी जब तक आप इस दुनिया में हैं। तो आप बैक्टीरिया से लेके होमोसेपियंस और होमोसेपियंस से लेके होमो दिवस बनने तक कंपटीशन तो चलते रहेगा, एंड दैट्स नेचुरल एंड नॉर्मल। Okay, Saurabh, you had more comment? I wanted to say something, थोड़ा सा पर्सनल है, बट ये कंपटीशन का टॉपिक से मेरे को अंदर से एक आवाज आई, एंड आई विल गिव एन एग्जांपल। आई विल नॉट नेम थिंग्स, जो लोग स्मार्ट है खुद समझ लेंगे। एक छोटा सा बच्चा है, उसकी हाइट है लेट्स से 3 फीट की, और एक 6 फीट का इंसान है, दोनों लॉन्ग जंप कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जो 6 फीट वाला बंदा है वो ज्यादा लंबा कूदेगा और जीत जाएगा। लेकिन आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या जीत सकता है। सो मुझे इसी डिस्कशन से एक छोटा सा फील आया कि अगर वो बच्चा थोड़ा सा लंगड़ी दे दे लंबे वाले को तो वो जीत जाएगा। तो मैंने सोचा है मैं इसको अपनाऊंगा। अब कोई इसे एथिकल कहे अनएथिकल कहे, बट लेट मी ट्राई इट आउट, और मैं दिसंबर तक आपको कुछ रिजल्ट देता हूँ। Okay. तो ये तो आई थिंक कॉमिक्स वगैरह में पढ़ते थे ना, सुपर कमांडो शुरू में बोलता था वो कि जो जितना लंबा होता है उतना जल्दी गिरता है। यस रवि प्लीज। अच्छा, इमीडिएटली सौरभ के पॉइंट पे जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूं। माइकल फ्लैप को आप जानते होंगे, स्विमर। फेल्प्स। हाँ, सो माइकल फ्लैप अभी डिफीट हुआ ओलंपिक में। उसी का एक बच्चा था जो जब वो पहला कंपटीशन से लड़ रहा था, जब वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो उस टाइम में उसके साथ में सेल्फी था, कुछ 10 ईयर का था, और वही बंदा आगे जाके उसी को हरा दिया।
ओलंपिक में। सो ये है, दिस इज हाउ द कॉम्पिटिशन गोज इन। और मेरे हिसाब से ये कि कॉम्पिटिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू में बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। ये जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ डेवलपमेंट है, खुद के साथ में कंपटीशन मतलब compete करना, बहुत सारी चीजें चेंज होती है इसकी वजह से। सो दिस इज अ गुड फीलिंग। एक दूसरी पॉइंट है कि जैसे हम लोग सेल्स में जनरली ये वर्ड यूज करते हैं, आई वांट 200% और आई वांट 300% अटेंशन और अचीवमेंट्स एंड काइंड ऑफ थिंग। लेकिन जब व्हेन यू आर इन कॉम्पिटिशन, व्हेन यू वांट टू डू द थिंग्स, हम सभी जानते हैं कि देयर इज नथिंग बियॉन्ड 100%। आप सिर्फ अपना 100% ही दे सकते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज 200%। लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, और वो एक भाव रहता है जिसकी वजह से बोलते हैं नो आई वांट 200% ऑफ योर कंसंट्रेशन, आई वांट 200% ऑफ योर अचीवमेंट्स काइंड ऑफ थिंग। सो दिस ओनली गिव्स दैट माइलेज टू गो अहेड एंड डू इट। One second point, I was talking in the beginning, there is three things which is very much required for the behavioral life. One is the competitions, frictions and problem. If you do not have frictions, you cannot expect a movement. Movement के लिए frictions बहुत जरूरी है। Second, problems. If you are a human being and you want to live your life, you need to have a problems. The moment you do not have problems, you are dead. And third thing is the competitions, to go ahead and feel the achievements, feel the things which you want to do every day. So competitions is a must required. So this is the points. Yeah. Sure. अब थोड़ा सा entrepreneur startup side आते हैं. तो I will say one thing and we can add. अच्छा अभिराम wants to say, अच्छा एक मिनट मैं ऐड कर देता हूँ फिर you can add. तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि why I also encourage lot of people to do entrepreneurship या जो भी है at a young age, क्योंकि entrepreneurship अगर करियर आपने थोड़ा सा भी परस्यू कर लिया ना, तो आपका ये जो ईगो है, ये है, वो है, सब उसी झटके में उसी वक्त खत्म हो जाएगा। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको कुछ बेचने की कोशिश करेंगे और जब लोग आपको धिक्कारना शुरू करेंगे, भागो ऐसा नहीं लेना, ये है, वो है, सो उस वक्त आपका वो जो ईगो बूस्टर हो रहा था ना, फर्स्ट रैंक की वजह से, सेकंड रैंक की वजह से, आईआईटी की वजह से या किसी भी वजह से, वो आपका ईगो बूस्टर मतलब कहीं ना कहीं आपको जमीन पे ले आएगा। You are as good as as an overall product, not just a mark kind of thing. Yes, Abhiram, please. Yeah, I just wanted to add a couple of points on what others mentioned. As Atulji said, I think getting that humility is very important for everyone. I'll just quickly share one of the incident that we had in our 11th and 12th class. There used to be a mathematics lecturer. Even if you answer, like when he asks you a difficult question, and if you answer, even though it's a difficult question, if you answer, he'll say, "Oh, come on, even a dog can answer that. Please sit down." So it's not. It's about how you take it. But the thing is, I mean, the context like the way he responds is in a humorous way, and I think that is one thing that made my humility to become better, how I look at things. And I think everyone is saying that. I think having the experiences, I think Mark Cuban says this thing, right? Like, where if you forget about whether you success or failure in anything that you try, having the experiences is the most important thing. So in that manner, I don't really agree with Ravi in the sense that competition is really required. I believe in experiences and pushing yourself to learn things instead of competing with someone and thinking that, okay, I have achieved something. Maybe at a beginning stage, yes, it helps, but over the time, I think realizing that learning continuously every day in your life is the most important thing, instead of just achieving something and then going on a new target. That's my opinion. Abhiram, how will you push yourself if you're not competing with anyone? One That's day why you would just stop pushing yourself.
So as I said, it's not at the early stage of your career, but after having, like, right now I have 10 to 11 years of experience, actually 11 years of experience in networking industry. Now I am at a stage I have explored various things. So I don't have to compete with someone. I know what are all the problems that I can solve. As Vishal mentioned, okay, you have to get this entrepreneur skill. I would think of it as a learning skill where I want to learn a new thing every day, and in that process, I will invent something, be it a failure or be it a success. So that's how I motivate myself. Or the only target or the only thing that I look for is that I'm learning something in every day or not. That's it. So Abhiram, in a nutshell, you are saying you are a zero competition person now? I'm not saying that, right? Like the thing is the balance. So Little bit is there. the balance is the key बैलेंस to बोल के ना everything. तुम मेरा ब्रह्मास्त्र जैसा यूज करते रहते हो जाके, पता है? जब क्वेश्चन पूछो डॉज, ओके बैलेंस, दैट्स माय आंसर, थैंक यू. Hey, Vishal, if you permit me, I want to ask Abhiram. Yes, please. You to talk about balance most of the time. Is it the balance which you talk, or it is the neutral terms which you talk, or you to acquire in your life? Because most of the times when you say it, mostly convey me as a neutral thing. You want to be neutral kind of things. It's not balance. No, so okay. It's not having a perspective, Abhiram. Okay, sure. I agree with Ravi and everybody else. Abhiram, you have to take a stand. You can't be neutral every time. Okay. ठीक है, देखो वही बोला ना कि बैलेंस तुम ब्रह्मास्त्र जैसा यूज मत करो. So balance can be subjective, right? तुम्हारा balance point और मेरा balance point will be different. So now, but we still need some kind of universal measure, and then there is a local measure. I mean, अपना भी है कि हाँ चलो मेरा ये standard है, universe का ये standard है, let's say whatever something like. तो ठीक है, I think okay, इस पर थोड़ा सा और discuss करते हैं हम लोग. तो I think let's talk about entrepreneurs. I think जैसे अतुल सर ने कमेंट किया कि सारे entrepreneurs चाहते हैं कि पूरा दुनिया उनका हो जाए. तो ये जो माइंडसेट है कि पूरा दुनिया उनका हो जाए, लाइक मोनोपोली क्रिएट करना, इज इट रियली टू क्रिएट अ मोनोपोली एज सच, और इज इट समथिंग एल्स? आई मीन, इज इट लाइक, क्या लोग ये चाह रहे हैं कि मेरा मोनोपोली हो जाए, लाइक मैं ही मैं रहूं, लाइक भगवान जैसा, सिर्फ सिंगल गॉड टाइप, या फिर देयर इज अनदर way to explain this nature, that okay, so I would like to maybe, I don't know, maybe I'm the reasonable person or something, I don't know. Let's hear from people. What do they think? Yeah, Ravi, please. So acha Atul sir, acha Ravi pehle, Ravi very quickly, and then Atul sir. Okay. sir आप हाथ उठाइए. So the question which you ask Vishal, Atul sir, कभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस लेके बोल चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी मोनोपोली का भाव किसी के पास भी नहीं रहता है, या फिर दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई विल से इन जनरल कि मोनोपोली का भाव नहीं रहता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना ही है. I want to go ahead and make the things which can be advantage to me to make my products or make my company or make my things go into the market at large. I can cater more of the time so that I can have a more of the advantage, competitive advantage with respect to the people who are into my line. And changing that, the outcome become like monopoly. So monopoly for a company, it would not be monopoly, but it would be for the market who do the research, and then the persons who look at the company. Okay. Hari ji, you have some comment, please. Then Atul sir can. Yes, I understand this. Voice आपकी audible. Voice break हो रही है. अभी try कीजिए एक बार. Yes, abhi am I audible? Yes. So I was saying कि I don't think कि any business is purely a monopoly now these days.
और अगर हम एक एक एग्जाम्पल्स कंपनी को लेके स्टडी करेंगे, सो वी can understand better why monopoly, whether it is beneficial or why it is there monopoly, and whether competition is beneficial. So apart from government or regulatory bodies, monopoly तो कहीं पे भी दिखाई, it's not true that true monopoly or real monopoly exists now, because इतने सारे competitors आ चुके हैं कि even if we say Coca-Cola, then again there is a Pepsi. So it's not a monopoly, but उसके जैसा ही similar कोई ना कोई तो product है ही market में. So I don't think there is a true monopoly anywhere now in this scenario. चाइना में है, चाइना में. हाँ, चाइना तो कम्युनिज्म है, नहीं, but कम्युनिस्ट global आइडियोलॉजी. वो भी नहीं है शायद. But anyway, we'll come to this. Atul sir, please. Yes. मैं अपने कमेंट को मोनोपोली वाले को थोड़ा मॉडरेट करना चाहूंगा. कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है कि हर आदमी, हर एंटरप्रेन्योर बिल गेट्स और एलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स नहीं है. मैं किसी छोटा सा चाय का दुकान चला रहा हूँ, तो मैं उस मोहल्ले में थोड़ा मोनोपोली चाहूंगा कि मैं ही चाय दुकान में सब लोग आके चाय पिए. कोई अगर सिटी लेवल का है कि मान लीजिए किसी एक सिटी में, मान लीजिए कि जयपुर में या इंदौर में, वहां मैंने एक फर्नीचर का शॉप खोला है, तो मैं चाहूंगा कि मेरा फर्नीचर का शॉप पूरा जयपुर मेरे फर्नीचर के शॉप से आगे खरीदो और मैं सब कुछ वहाँ प्रोवाइड कर दूँ. आपको फर्नीचर चाहिए और भी कुछ उसका फिक्सिंग वगैरह चाहिए तो सब कुछ दे दूंगा. तो ये जो मोनोपोली वाला जो माइंडसेट है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक भी है कि आप अपने मार्केट में यू वुड लाइक टू हैव अ डोमिनेंस. प्रॉब्ली जो कॉम्पिटिशन की बात ये कर रहे थे आई थिंक रवि जी, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात है, तो उस मार्केट में यू लाइक टू हैव डोमिनेंट पोजीशन. तो एक चाय का दुकान वाला जो है, तो वो नहीं सोचेगा कि मैं चायोज और स्टारबक्स के को पीछे छोड़ दूं, मैं ही सबसे बड़ा चाय. बट उस मार्केट में चाहे कि इस मोहल्ले का सबसे फेमस, सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मैं हूँ, सबसे अच्छा चाय वाला हूँ, मेरे मोहल्ले में आओ तो मेरे यहाँ ही चाय पी के जाओ. तो ये वाला जो फीलिंग एंटरप्रेन्योर्स के बीच में होता है, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से. कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इसको डिफाइन करना पड़ेगा. श्योर, इस पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं. चलिए कमेंट प्लीज. सर, मोनोपोली पॉलिटिशियंस चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं, ये मेरा मानना है. सही बात. और दूसरी बात, रुको मत, बोलते जाओ. अतुल सर ने, हाँ, जो अतुल सर ने बोला कि मतलब क्या उन्होंने पॉइंट बोला कि डोमिनेंस, तो सर अगर कोई कंपटीशन नहीं है, डोमिनेट किसको करोगे? अपने कस्टमर तो कर नहीं सकते, तो डोमिनेट किसको करोगे? तो मैं आंसर दूं, तो आप मार्केट को डोमिनेट करोगे इन द सेंस कि उस मार्केट में यू विल डिसाइड कि क्या रेट होना चाहिए चाय का. वॉइस ब्रेक हो रही है तो सर आपकी, आई थिंक समहाउ. Let me just give like my own thought process on this. कि मैं भी अपने, you would have seen, I'm doing this e-learning for children, right, and getting this international teachers for them. ठीक है, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा इंडिया के सारे बच्चों को मैं ही एजुकेशन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा. मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ कि मुझे देख के एक्चुअली बाकी स्कूल्स भी अगर इंस्पायर हो जाते हैं इसमें कि they should also get some this global teachers for their kids and things like that. कि so I'm just looking for a market share and not even a dominant market share. I'm just looking कि मेरा काम चल जाए और ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता रहे. तो वो आई थिंक एक ह्यूमन नेचर भी होता है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद थोड़ा ग्रोथ चाहिए होता है, नॉट टू रियली डोमिनेट द वर्ल्ड, मोर एज अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंपटीशन बोल सकते हैं कि मुझे खुद ग्रो करना है. कि अब मैंने अगर इस महीने 10 एक बैच स्टार्ट किया है, तो एक साल के बाद मेरे 1000 बैच हो जाए, फिर उसके बाद 10,000 हो जाए, ऐसा सो ऑन, जो भी एक मैंने अपना बना लिया ट्रैजेक्टरी. बट इट्स नॉट टू से कि आई वांट टू डोमिनेट द होल वर्ल्ड, कि सिर्फ मेरा ही स्कूल चले, बाकी सारा स्कूल बंद हो जाए, मैं सारे स्कूल को मैं ही डोमिनेट करूं. तो ये मेरा इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस है. आई मीन पीपल कैन डिसएग्री विद दिस, या लोग मुझे बोल सकते हैं कि आप इतना कर रहे हो तो आप इतना ऊंचा क्यों नहीं सोच रहे हो. तो ये जो भी है,
बट मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर कंपटीशन भी आता है तो it will be good. I mean, it's actually even fulfilling my vision कि कि एक global exposure for all children है, वो पूरा होगा मेरा। और मैं अकेला नहीं कर सकता। सौरभ ने भी बोला था, I think it's in unison with his statement कि अकेला क्लियर देखो पूरा इंडिया को केटर नहीं कर सकता या पूरा दुनिया को भी नहीं कर सकता, तो कंपटीशन तो चाहिए। और एक और मेरा खुद का अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कंपटीशन नहीं होता है ना तो ये प्राइसिंग करने में बड़ा दिक्कत हो जाता है क्या प्राइस ले नहीं ले, समझाने में बहुत दिक्कत हो जाता है प्रोडक्ट कि भाई समझाओ कैसे, मतलब अकेला इंसान हो ये वो समझा के मतलब मेरा गला दर्द कर गया मेरा। कंपटीशन होता तो बोल देता हाँ चलो मैं उबर जैसा हूँ, बोला है बोला हाँ मैं उबर जैसा हूँ, थोड़ा सा कम रेट है थोड़ा ज्यादा रेट है, या मैं छोटे शहरों में हूँ ये हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाता है। थोड़ा सा इजी इन अ वे कि लोगों को समझाना थोड़ा इजी हो जाता है। और इंडिया में मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि बहुत बड़ा गैप सॉल्व करेंगे ना अगर आप, तो लोग आपको मतलब आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। मतलब कस्टमर्स बोल रहा हूँ, ठीक है, लोग हंसने का बात नहीं कर रहे हो, हंसते तो है ही, बट अगर आप छोटा सा गैप सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत छोटा सा है, सो दैट पीपल एक्सेप्ट राइट अवे। ठीक है, तो ये एक मेरा ये है। आई थिंक सौरभ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? एग्री डिसएग्री यहाँ पे ऐड ऑन? 100% अग्री, क्योंकि मैंने तो ये बोल ही दिया, मतलब इंडिया जैसी कंट्री में आप किसी दूसरे छोटी सी कंट्री में सोच भी सकते हैं, पर इंडिया जैसी कंट्री में एक प्लेयर का मोनोपोली चल ही नहीं सकता है। प्लस एक और चीज है, लेट्स से कि आपका ब्लू ओशन स्ट्रेटजी था शायद वो, जिसमें आप पहला कुछ कर रहे हो। लेट्स से मेरे से पहले कोई चश्मे की दुकान ही नहीं थी और मैंने चश्मे की दुकान खोली, पर मुझे देख के 5 लोग खोल लेंगे ना, तो आपका मोनोपोली रहेगा ही नहीं एक तरीके से। लोगों के पास काफी रिसोर्सेज हैं, सारे लोग, बहुत लोग हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आप कोई ना कोई तो अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, सोच रहा है अभी इस टाइम पे, लर्निंग वाइल ट्रैवलिंग भी लोग सोच रहे हैं इस टाइम पे। सही बात है। और बड़े कोई मतलब जिसके पास बहुत पैसे हैं वो आ गया अगर, तो आप तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाओगे या एक्वायर हो जाओगे, या मतलब उस वक्त बुद्धिमानी हो कि एक्वायर ही हो जाओ इससे पहले कि भूखा मरना पड़े। तो वो तो सर्वाइवल पे आ गया बात कि यस अतुल सर प्लीज। तो इसी पर मैं बोलना चाहता हूँ कि कुछ बड़े बड़े जो एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो एक कंपटीशन, वो मोनोपोलिस्ट नहीं, वो एक्चुअली एक नई इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फोन के फील्ड में एक स्मार्टफोन की कैटेगरी कोई डिफाइन करना चाहते हैं, इंडस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो, कैटेगरी डिफाइन करना चाहते हैं। तो चाहे वो कार के फील्ड में हो, जैसे कि टेस्ला का एग्जांपल बहुत अप्रोप्रिएट है कि टेस्ला ने ये सोलर कार का एक नया इंडस्ट्री क्रिएट, बैटरी के फील्ड में काम किया, लेकिन एक ऑटोनोमस कार की इंडस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली पहले टोयोटा था, होंडा था, इतने सारे बड़े बड़े कार कंपनी से, तो बट कुछ लोगों ने कहा कि मैं एक नया इंडस्ट्री क्रिएट कर दूंगा, सोलर ड्रिवन कार रहेगा, और अब तो उसमें भी कंपटीशन आ गया है। तो जो बहुत सारे लोगों का होता है, कोई लगता है कि मैं कैटेगरी नया क्रिएट कर दूंगा। जैसे चश्मा का बिजनेस है, चश्मा का बिजनेस, सौरभ के बिजनेस में बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे, बट सौरभ ने एक नया कैटेगरी क्रिएट कर दिया कि कूल वाला चश्मा, या कूल भी है हेल्दी वाला चश्मा, एक नया कैटेगरी, मतलब कि फैशन के फील्ड में बहुत सारे लोग नया फैशन का कैटेगरी डाल देते हैं। तो कैटेगरी डिफाइनिंग, इंडस्ट्री डिफाइनिंग, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। बहुत सारे लोगों ने स्मार्टफोन के फील्ड में, जैसे कि एप्पल ने आईफोन, पहला स्मार्टफोन मतलब कि वो फ्लैट स्क्रीन वाला बनाया, तो एक तरह से इंडस्ट्री नया क्रिएट कर। उसके पहले से नोकिया एंड ब्लैकबेरी बहुत सारी कंपनी थी, बट स्टीव जॉब्स ने एक स्मार्टफोन टच स्क्रीन वाला नया कैटेगरी, बाद में फिर उन्होंने आईपैड ला के एक नया क्रिएट किया, आ गया। हर इंडस्ट्री में बाद में तो आ ही जाएगा, बट कुछ लोगों ने एक नया इंडस्ट्री कैटेगरी क्रिएट करने वालों, वो एक्चुअली असली मैं कहूंगा कि एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर होते हैं। मोनोपोलिस्ट तो कोई नहीं रह पाता, लेकिन एट द एंड ऑफ वो जो इंडस्ट्री क्रिएटिंग डिफाइनिंग जो बॉडी होता है, उनके लिए हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड दैट इज अ गुड एम्बिशन टू हैव कि मैं एक नया ब्लू ओशन का जो बोले, मैं नया एक अपना नया एक ओशन ही नया क्रिएट कर दूंगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड एम्बिशन टू हैव फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मतलब उसका आंसर कोई भी दे सकता है। सर मान लो मेरा स्कूल है, आपके पॉइंट से कनेक्ट करूंगी, मेरे स्कूल में 4 एडमिशन हो रहे हैं, बगल वाले में 2 एडमिशन हो रहे हैं, वो तो मेरी सक्सेस हो गई। पर अगर आज 4 हो रहे हैं मेरे में, कल 6 हो रहे हैं, तो क्या मैं वो खुशी मना पाऊंगी जो दूसरे से कंपटीशन करने में? तो यह सेइंग कि कंपटीशन से जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलेगी, मतलब
उनको बीट हाँ कर। मतलब सर फिर वो मजा नहीं रह जाएगा ना। हाँ तो मजा के लिए कंपटीशन करना चाहिए। आई थिंक जो हम लोग बात कर रहे हैं कि लोग सजा के लिए कंपटीशन करते हैं। Who wants to raise the hand? I think yeah, Chanandan, yes. What do you think? Competition for fun? I is think good, I right? think for the I think for the serial question, it would be as a small boost up. It has to be as a small boost up to compete for the other people. It should not be like I got the first rank, it is enough. You have taken an example like an 4 admissions was gone completed. We have to shut down. It should not be there. It should be an boost up for them, and it should be an competition to acquire a high level of competition who he think like he is in competition for them. That's it I want to say. Yes, I think what Nandan is saying is basically we have to keep on innovating. ये नहीं कि I made this Nokia phone. I am the first person, first company to capture the whole global market. Now nobody can come near to me. ठीक है? तो ये वही जो I think हमने थोड़ा सा बात भी किया ना वो ego arrogance वाला चीज। तो कहीं ना कहीं लोग इस कंपटीशन और ईगो एरोगेंस ये सब के चक्रव्यूह में फंस के खत्म ही हो जाते हैं। सो इट हैज टू बी टेकन इन अ फन वे, गुड वे। ये भी नहीं कि मेरा 2 एडमिशन हो रहा है सामने वाले का 4 हो रहा है, मैं दिन रात रोता रहूं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। रादर आई शुड बी मोर एक्सेप्टिंग, मे बी हैप्पीली कि हाँ चलो ठीक है ये हो रहा है, मे बी समथिंग इज रॉन्ग इन आवर साइड और समथिंग इज इम्प्रूवमेंट। और ये तो दिस विल लीड टू ग्रोथ एज अ होल, राइट। मैं उससे अच्छा होऊंगा, राइट, फिर वो मुझे देखेंगे, वो मेरे से अच्छे होंगे, तो ऐसे ही धीरे 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 करके सारे लोग जन्नत की डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एज सर कंपटीशन नहीं होगा तो शायद कुछ नया करने का वो भी नहीं होगा, इनोवेशन नहीं वही होगा। तो आई थिंक जो अभिराम वाला था ब्रह्मास्त्र, इस बार मैं यूज करता हूँ बैलेंस वाला कि आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट इट्स गुड बट उसके बियॉन्ड इट बिकम्स टॉक्सिक। यस अंजन प्लीज। यार कंपटीशन आई थिंक इज अ वेरी इजी मेथड टू बेंचमार्क योरसेल्फ कि आपको कहाँ पहुंचना है। बहुत सारे लोग कंपनीज के आपके टैगलाइन में दिखेगा वी वांट टू बी द बेस्ट इन दिस, वी वांट टू बी अ मार्केट लीडर ऑन दिस, एंड इनहेरेंटली जब आप वो स्टेटमेंट मार रहे हो आप बोल रहे हो कि किसी को बीट करके मैं बेस्ट बनूंगा, राइट। तो अगर मतलब मे बी आप एक्यूरेट मार्केट साइजिंग नहीं करना चाहते हो कि टोटल मेरा मार्केट कितना है, ज्यादा यूज से कि चलो ये 100 करोड़ का बिजनेस है, आई वांट टू बीट दैट, आई वांट टू गेट टू अ 100 करोड़ काइंड ऑफ अ नंबर। सो दैट इज वन वे टू लुक एट कि यार कंपटीशन, चलो ये मेरा कंपटीशन है, कंपटीशन इतना बना रहा है तो मुझे भी इतना के आसपास बनाना चाहिए, बट सो दैट्स वन। सो अदर थिंग वाज कि आप अगर बोलो कि ऑब्जेक्टिवली बोलना कि कंपटीशन अच्छा है कि बुरा है, आई वुड से कि इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी गुड। कंपटीशन नहीं होगा यार, कोई इनोवेट नहीं करेगा, कोई डिफरेंशिएट करने की कोशिश नहीं करेगा, कोई कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेगा, हर कोई ओनिडा का टीवी बना रहेगा। अगर ओनिडा होता तो अभी सैमसंग से हमारे ये सारी चीजें मिलती नहीं, हमारे इतने डेवलपमेंट जो रहे हैं वो सब होते नहीं। तो इट्स भी नहीं होता फिर। मतलब कंपटीशन इज वेरी एसेंशियल, इट्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थिंग जो आपका it's very essential. मतलब unless you're threatened या unless you feel the threat कि I am being obsolete, मेरा कुछ people are moving ahead of me, so you would not want to move है। मतलब inherently वही हो गया, law of inertia वाली बात हो गई, inertia sorry the other way around. So if you do not if there is no external stimuli, law of motion हो गया, move करते रहना है आपको, रुकना नहीं है। Exactly, just because सारे लोग कर रहे हैं, so I have to be relevant. So that's one perspective to look at it. Sure. One point I wanted to add on this कि the best person to compete is with yourself. आप अपने से compete कर रहे हो कि कल आप कहाँ थे, you are at 10 and आज आप today at 11, तो you are improving, and that is the best competition to have. You're competing with yourself. And the other thing is कि आपको competition choose भी करना है ना, तो ऐसे ऐसे बड़े लोगों से compete choose करो, बहुत so high in the sky कि आप जंप करके आप मार्स से मून पे तो नहीं पहुंचो, मार्स पे तो नहीं पहुंचोगे, मून तक तो मून तो नहीं तो चलो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे तो जा ही सकते हो। तो वो भी एक अच्छा कंपटीशन है कि लुक एट द स्काई, ऊपर जाना है मुझे, लेकिन उसके बाद साथ में यू शुड हैव कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड कि मैं कल को गिरूं अगर जंप छलांग में तो मेरे पैर नहीं टूटे। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी ready to accept those failures. आप बहुत high ambition से trying to compete with the best of the best in the world, but you also to realize
you might fail and the same time fail करने के बाद आप सुसाइड नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ एकदम फेलियर नहीं माने अपने आप को कि नहीं चलो अगले बार ज्यादा प्रैक्टिस करके थोड़ा ज्यादा कूदते हैं. तो competing with self is a very good example I can say. Yes sir, please. Okay. So with respect to business, competition is highly required. अभी legally भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन्स को एनकरेज करती है. और इकोनॉमिस्ट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स मोनोपोली को हमेशा डिस्करेज करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट विच मोनोपोली ब्रिंग्स इन ड्यू टू मोनोपोली. अभी आई विल पुट द एग्जांपल ऑफ 1991. Till 1991, competitions was not from the outside India, and governments only the few companies who were running the Indian business scenario. So competitions का कहीं ना कहीं बहुत कम था. When the liberalization, globalization happened in 1991, and then outside companies started coming in, then competitions came in market, and then suddenly the rise of business scenario started in India. The industrialization started in India in a new way, new form. And a lot of the things started happening after 1991. So, and government also has a policy to be in competitive with the markets, and एक law भी है competitions को लेके to kill the monopoly. MRTP, monopolies and restrictive trade practices, MRTP. Yes, yes. So it is by law also competition should be there in the market. Sure. Yes sir, please. एक्चुअली कंपटीशन घर में भी होता है. जैसे बीवी बोलती है कि देखो सामने वाले का पति तो उसे डेली शॉपिंग कराता है. तो बच्चा लोग भी बोलता है सामने वाला का बाप देखो. हाँ, उसको तो इतना पॉकेट मनी मिलता है. हस्बैंड भी बोलते हैं देखो बीवी तो बड़ा अच्छा, उसकी बीवी तो बहुत अच्छा ड्रेस पहनती है, तुम क्या ड्रेस पहनती हो. सौरभ, इसके ना अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये है कंपैरिजन ज्यादा बोलेंगे, कंपटीशन कम है. तो मैंने आज बर्तन धोया, तुमने आज सिर्फ झाड़ू दिया. This is the current context. इसका मिसयूज भी होता है. That's what I think we are saying, right? Correct. तो ये भी है. I think ये अभी तो ये थोड़ा मजाक वाला चीज हुआ, बट ये है अब. Now this is the negative side of competition. So अब नेगेटिव साइड बात करें, लेट्स से एज अ स्टूडेंट ही बात करते हैं, तो लाइक जैसा अतुल सर ने एग्जांपल दिया और हमने भी बहुत सुनते रहते हैं ना कि किसी का नंबर नहीं आया तो एकदम पूरा मतलब वो देवदासी बन गया और पूरा गिव अप ही कर दिया. इवन फॉर एंटरप्रेन्योर्स दिस बिजनेस वाले में भी सही है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल पाया, आप लाइक लेट्स से स्कूल कॉलेज के टॉपर थे, आपने बोला कि कल तो मैं बिजनेस चालू करूंगा, परसों मेरा फंडिंग होगा और उसके बाद तो मैं यूनिकॉर्न, और अब पता चला कि 3 दिन से बिजनेस चालू ही हो रहा है. वेबसाइट भी नहीं बना. तो आप तो डिप्रेशन में मतलब जाने के डायरेक्शन में चले ही गए हैं. तो दिस इज वेयर थिंग्स गो रॉन्ग. सो मे बी लेट्स हियर सम एग्जांपल्स या सम टेक. आई थिंक अंजन, व्हाट डू यू थिंक? जैसे तुमने कुछ एग्जांपल दिया भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू थिंक? आई मीन कंपटीशन कहाँ गड़बड़ हो जाता है? यार ये बहुत ही रेलेवेंट है. मतलब अगेन मैं फिर से बोलूंगा, कंपटीशन इज अ वेरी गुड वे टू बेंचमार्क योरसेल्फ. कि people who are considered कि चलो मेरे peer companies की या peer people थे, how they have progressed versus how I have progressed. So maybe it may not be an absolute skill और एक like to like comparison नहीं होगा, but it gives you a brief idea कि चलो यार ऐसा होना चाहिए था. This is what some part should be. और मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ, so it gives you an idea कि how well you are doing as compared to what you could have done. So yeah. Sure. Sorry, you have any comment on this? When does competition go wrong? तो घर वाला एग्जांपल छोड़ के मैं अपने से रिलेट करूंगा. I have stopped comparing myself because I have always lost. So I have learned from it. तो जब मैं बचपन में था तो मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था कि दूसरे का बच्चा तो इतना नंबर लाता है, तुम तो पास हो जाते हो, बहुत बड़ी बात है. तो मैं बचपन से मेरी जो अपब्रिंगिंग रही है, I was not a very academically good student when I was in school. कॉलेज में भी ऐसे ही था, जॉब में भी ऐसे ही था. जॉब में भी मुझे बहुत बार they had asked me to leave. आज भी despite whatever little I have achieved, I don't compare with someone जो मुझसे नीचे है. I always compare with someone जो मुझसे ऊपर है. तो till date I am failing whenever I am comparing myself, but I think that is the strongest point of me, that I don't compare with someone who is
below me or who has achieved lesser than me. So मेरे लिए तो competition has always worked. मैंने नेगेटिवली लिया नहीं, एक टाइम पे लेता था, लेकिन उसके बाद ना आई एक्सेप्टेड कि मेरा कुछ हो नहीं सकता है. उसके बाद पता नहीं लास्ट बॉल पे छक्का लग गया और अब आई स्टार्टेड कंपेयरिंग विद बेटर पीपल. ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आई थिंक सौरभ जो तुमने बोला, लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल, कंपटीशन या कंपैरिजन अपने से ऊपर वाले से करना चाहिए, नीचे वाले से नहीं. तो मैं एक काउंटर बोलता हूँ इस पे कि अगर मुझे हर दिन खुश रहना है, हर दिन हंसते रहना है जैसे मैं हंसता रहता हूँ ठीक है, तो मुझे हमेशा अपने से नीचे वाले से कंपेयर करना होगा क्योंकि मुझे खुश रहना है. मैं अगर ऊपर वाले से कंपेयर करूंगा तो मैं हर दिन दुखी रहूंगा, दिन रात रोऊंगा. तो for inspiration I should compare with the people who are above me, or for happiness I will probably compare myself with people who are below me. Now again वो ब्रह्मास्त्र बैलेंस वर्ड कि अब मुझे ये डिसाइड करना है कि दिन भर मुझे इंस्पायर होना है या दिन भर मुझे खुश रहना है या थोड़े देर इंस्पायर होना है, बाकी टाइम खुश रहना है. मतलब दिन भर मैं रो नहीं सकता कि यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, सबको फोन करके रो, घर में वाइफ को भी बोलूं या जो भी मतलब मम्मी पापा को बोलूं, सबको बोलता रहूंगा मैं. तो बोले और छोड़ो, वो आपस रिलेशन वाले लोग तो एक्सेप्ट कर भी लेंगे, दोस्त साथी को इस तरह का फोन करूंगा तो फोन उठाना बंद कर देंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दूसरों लोअर वालों से compete करके खुश हो जाएंगे तो दिन भर खुश तो रहेंगे, बट रात को चैन की नींद नहीं आएगी. तब तो कोई किसी को हम शो ऑफ नहीं कर रहे हैं ना, रात को तो अपने साथ हो आप, तब आपको कैसे नींद आएगी, आप कैसे खुश हो गए यार, तुम एक बच्चे से compete कर रहे हो, तुम्हें तो compete करना चाहिए उसके बाप से. सो ये मेरा थिंकिंग है. ठीक है, और बाकी लोग से पूछ लेते हैं. आई थिंक वी हैव 3 मिनट्स. यस सेजल, व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए? सर एक तो दो पॉइंट होते हैं. एक तो आप किसी का अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो, वो चीज गलत है क्योंकि आप बहुत मतलब खुद के साथ गलत कर रहे हो. अगर आप चैप्टर 1 को ही चैप्टर 2 से या 3 से या 1 से ही कंपेयर कर रहे हो, वो चीज सही है. सर लोअर से कंपेयर करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट खत्म, क्योंकि उस टाइम हम ही सुप्रीम है. अगर हम लोअर से कंपेयर करेंगे तो हम सुप्रीम है, फिर तो खत्म, बात ही खत्म. जब हमने सब कुछ अचीव कर लिया है तो फिर आगे का क्या स्कोप है? तो चैप्टर 1 को चैप्टर कुछ खत्म करना है या क्या करना है, मतलब दिन भर क्या करना है, 24 घंटे में कैसे डिवाइड करना चाहिए? या तो सर यू वांट टू ऐड समथिंग? विशाल, हाँ जस्ट कमेंट में जस्ट बोला कि आज प्रोग्रेस की होती है. आज का सबसे प्रोफाउंड कमेंट अभी जो सेजल ने, दैट इज द मोस्ट प्रोफाउंड कमेंट कि आप चैप्टर अपने चैप्टर 1 को दूसरे के चैप्टर 20 से कंपेयर करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. वो सबसे प्रोफाउंड कमेंट था सेजल का. लेकिन पता कैसे चलेगा कि उसका चैप्टर 20 है? हम तो आई गेस प्रेजेंट स्टेटस से ही कंपेयर करते हैं. आप बुक हो सकता है कि बुक ही अलग पढ़ रहे हो, आपका आप हो सकता है कि बायो के स्टूडेंट हो, सामने वाला फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो अपने बायो के मार्क्स को और उसके फिजिक्स से मार्क्स कंपेयर कर ठीक नहीं है ना. वो हो सकता है उसको बनना है इंजीनियर बनना है और आपको डॉक्टर बनना है. तो ये देखिए कि हर इंसान का अलग अलग लाइफ में जर्नी है, डेस्टिनेशन है, और वो अपने रेस में आगे बढ़ रहा है, आप अपने रेस में आगे बढ़िए. कहीं पे साथ में कंपटीशन है कि आपकी क्लास में कोई सेक्शन में या सेम सब्जेक्ट के लिए तो थोड़ा बहुत कंपटीशन तो होगा, नेचुरल है. लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपके एग्जाम में नहीं, आप आईटी इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहे हो, वो मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो, तो फिर को क्या कम्पीट करना उससे. ठीक है सर, जो सेजल ने बात कही ना, सॉरी विशाल, ये बात ना समझ में नहीं आता है. बहुत बड़ी बात कही है सेजल ने, ये बात लोग को समझ में नहीं आता है. लोग तो चैप्टर 1 और चैप्टर 100 को कंपेयर करने लग जाते हैं. तो 1 और 20 तो कुछ भी नहीं है. कंपेयर करता होगा कि मैं पापा से आगे निकलूंगा, अभी आज के आज निकलूंगा, निकल के दिखाऊंगा. तो अच्छा एंड हो जाएगा टाइम. मैं एक लाइन से एंड करता हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे कर ऑन अ वेरी स्पेसिफिक बिजनेस केसेस. कंपटीशन क्या है क्या नहीं है, कि दिल इडियट है, प्यार से इसको समझा लो. तो ये सही है कि गलत, इसको कल स्टार्ट करते हैं ऑन द बिहेवियर साइड, कि हमें प्यार से अपने आप को समझा के खुश रखना चाहिए या मतलब कहाँ पे क्या करना चाहिए. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि ऊपर वाले नीचे वाले दोनों साइड देखना चाहिए या एक ही साइड देखना चाहिए. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर कमिंग टुनाइट. विल मीट अगेन टुमारो. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट.